Hello everybody. Today we'll study chapter 3rd of English from the Diary of Young Girl, which is written by Annie Frank herself. So let's start reading the chapter. Anneliese Marie Annie Frank was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. एनी फ्रैंक का रियल नाम एनालीज मैरी एनी फ्रैंक था और वो जर्मनी में पैदा हुई थी। उसने ये कहानी तब लिखी थी जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। तब एनी फ्रैंक को अपना घर छोड़कर अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में मूव करना पड़ा था और उसने ये कहानी एक बंद कमरे में बैठकर लिखी थी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazi gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. और उसकी फैमिली को एम्स्टर्डम में क्यों मूव करना पड़ा था? क्योंकि जर्मनी में नाजीज पावर में आ चुके थे। लेकिन जब नाजी कब्जे ने नीदरलैंड में विस्तार किया तो वो वहाँ फंस गए। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. Persecution का मतलब होता है अत्याचार। तो जैसे जैसे ज्यूइश पॉपुलेशन के खिलाफ अत्याचार बढ़ता गया, एनी फ्रैंक का परिवार जुलाई 1942 में उसके पापा ऑटो फ्रैंक की ऑफिस की बिल्डिंग में जाकर छिप गए। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank's death. 2 साल तक छिपने के बाद जो ग्रुप था उन्हें धोखा दिया गया और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया जहां एनी फ्रैंक की डेथ हो गई टाइफस की वजह से उसकी बहन मार्गरेट फ्रैंक के डेथ के कुछ दिनों बाद। Her father Otto Frank, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he got it published in English under the name The Diary of a Young Girl in 1952. पूरे ग्रुप में से सिर्फ एनी फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक ही बचे थे और जब वॉर एंड हुआ तो वो वापस एम्स्टर्डम गए और उनको ये पता चला कि एनी फ्रैंक जो डायरी लिखा करती थी वो बच गई है। ये मानते हुए कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, उन्होंने 1952 में द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से इंग्लिश में इस डायरी को पब्लिश किया। The diary was given to Annie Frank on her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. एनी फ्रैंक को ये डायरी उसके 13th बर्थडे पर दी गई थी और इस डायरी पे उसने 12 जून 1942 से जो भी इवेंट्स उसके लाइफ में हुए थे वो सब उस पे लिखा करती थी और उस डायरी की फाइनल एंट्री थी 1 अगस्त 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, television and theatrical production and even an opera based on the diary. एनी ने ये डायरी डच लैंग्वेज में लिखी थी पर उसको डच लैंग्वेज से और भी कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया और वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। मतलब कि वर्ल्ड वाइड उसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और भी कई फिल्म्स, टेलीविज़न, थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी बनाए गए जो उस डायरी की स्टोरीज पे बेस्ड थे। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. कहा जाता है कि जिसने ये लिखा है उसका माइंड काफ़ी मैच्योर है और ये डायरी पढ़कर नाज़ी रूल के टाइम पे डेली लाइफ कैसी हुआ करती थी इसका भी पता चलता है।
बाकी सारे हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स में से सिर्फ एनी फ्रैंक ही सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। हॉलोकॉस्ट का मतलब है जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई हो, वो होते हैं हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। Annie talks to her friends about ordinary everyday things. Perhaps she is in search of a real friend to whom she can open her heart. She finds a friend and calls it Kitty. It is a diary in which she does not jot down the facts but also pens down her most intimate feelings. एनी अपनी फ्रेंड से जो रोज़ की चीज़ें हैं उनके बारे में बात करती है, पर वो एक ऐसी फ्रेंड की खोज में है जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सके, और उसको वो फ्रेंड मिल गई। वो उसे किटी बुलाती है और वो है उसकी डायरी। वो अपनी डायरी में बस फैक्ट्स नहीं लिखती थी, मतलब सिर्फ जर्नल बातें नहीं लिखती थी, पर वो अपने दिल की बात उस डायरी में लिखती थी। जो बातें कोई अपने फ्रेंड से शेयर करता है वो बातें एनी अपनी डायरी में लिखा करती थी। In this lesson, she also provides us a brief sketch of her life and her emotional association with her grandmother. इस चैप्टर में आगे हम उसकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे अपनी ग्रैंडमदर से इमोशनली कनेक्टेड थी। She also presents a picture of a classroom situation in which Mr. Keesing, maths teacher, is annoyed with her and assigns her to write an essay on a chatterbox. She, however, justifies being a chatterbox in her essay that makes Mr. Keesing allow Annie to talk in the class. इस चैप्टर में एक क्लासरूम सिचुएशन के बारे में भी बताया है जहाँ पर उसके मैथ्स टीचर उससे बहुत तंग आ चुके हैं और वो उसे असाइन करते हैं एक ऐसे चैटर बॉक्स पे, और उस ऐसे में एनी फ्रैंक जस्टिफाई करती है कि हाँ वो एक चैटर बॉक्स है, और ये देखकर मिस्टर कीजिंग उसको अलाउ कर देते हैं कि वो बात कर सकती है क्लास में। Writing in a diary is really a strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 14-year-old schoolgirl. इसमें कहा गया है कि डायरी लिखना उसके लिए बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था, इसलिए नहीं क्योंकि उसने कभी डायरी लिखी नहीं थी, पर वो सोच रही थी कि आगे जाके ना ही वो इंटरेस्टेड होगी डायरी पढ़ने में और ना ही कोई और एक 13-year-old स्कूल गर्ल की डायरी पढ़ने में। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. वो कहती है कि कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे लिखना चाहिए और मुझे ज़रूरत भी है कि अपने दिल के अंदर जो भी थॉट्स छुपे हुए हैं मैं उनको बाहर निकालना चाहती हूँ, इसलिए मुझे डायरी लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. वो कहती है कि पेपर के अंदर इंसानों से ज़्यादा पेशेंस होती है, ज़्यादा सब्र होता है, क्योंकि अगर आप एक इंसान को कोई बात बताओगे, एक बार बताओगे, 2 बार बताओगे, 3 बार बताओगे, एक टाइम पे आके वो भी बोलेगा कि बस कर, कितना पका रहा है। पर एक पेपर पे आप जितनी मर्ज़ी चाहे उतनी बातें लिख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बातें लिख सकते हो। पेपर कभी आपको नहीं बोलेगा कि बस कर, अब मत लिख। और वो कह रही है कि मेरे मन में ये ख़्याल उस दिन आया था जब वो थोड़ा-सा डिप्रेस फ़ील कर रही थी और अपने घर पे बैठी हुई थी, काफ़ी बोर्ड थी और सोच रही थी कि क्या उसको कहीं बाहर जाना चाहिए या फिर घर पर ही रहना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज। तो फाइनली मैं वहीं बैठी रही जहाँ मैं थी। ब्रूडिंग का मतलब है जब इंसान बहुत सैड होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff bagged notebook grandly referred to as a diary,
unless I should ever find a real friend. It probably won't make a bit of difference. वो सोच के कहती है कि हाँ, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है, और कहती है वैसे भी मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं ये स्टिफ बैग नोटबुक किसी को पढ़ने दूंगी। स्टिफ बैग मतलब कोई नोटबुक जिसकी आउटर कवरिंग थोड़ी हार्ड हो, जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, कहती है, पर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव ए फ्रेंड। अब मैं वापस वही पॉइंट पे आ गई हूँ जिसकी वजह से मैं डायरी लिखने का सोच रही थी, और वो है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. कहती है कि मैं इस बात को और क्लियरली बताती हूँ, वैसे भी कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल वर्ल्ड में अकेली है। And I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people can call friends. वो कहती है कि हकीकत में ऐसा है भी नहीं। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी एक बहन है जो कि 16 साल की है, और लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, seem to have everything except my one true friend. कहती है कि मेरी फैमिली है, मेरी बहुत प्यार करने वाली आंट्स हैं, एक अच्छा सा घर है, पर वो कहती है कि एक तरफ से देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, सिवाय एक सच्चे दोस्त के। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. कहती है कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, मैं सिर्फ सोचती हूँ कि हम अच्छा टाइम स्पेंड करें। मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ रोज़ की ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में ही बात करती हूँ, जैसे आप कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, और भी ऐसी ही नॉर्मल बातें। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. कहती है कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम इससे ज़्यादा क्लोज आएंगे और अपने सीक्रेट शेयर करेंगे, और यही प्रॉब्लम है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. कहती है कि हो सकता है कि ये मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते और हम क्लोज फ्रेंड्स नहीं बन पाए। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. कहती है अब ये जिस वजह से भी है, अब ऐसा ही है, और unfortunately, ये हालात अब बदलने वाले भी नहीं हैं। This is why I've started the diary. कहती है यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. कहती है कि एक लंबे अरसे से जिस फ्रेंड का मैं वेट कर रही थी और जो मेरी इमेजिनेशन में थी, वो फाइनली मुझे एक डायरी के रूप में मिल गई है। और वो कहती है कि जैसे ज़्यादातर लोग डायरी लिखते हैं, मैं वैसे नहीं लिखूंगी। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड बने और मैं उसे किटी बुलाऊंगी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. ये बता रही है कि अगर मैं इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं डायरेक्टली इसमें कहानी लिखना शुरू कर दूंगी तो कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इसलिए मैं अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच मतलब छोटा सा स्केच देती हूँ कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, कहती है कि एक्चुअली में मुझे ये बताना पसंद नहीं है, पर बताना पड़ेगा क्योंकि ऐसे किसी को डायरी की स्टोरी समझ नहीं आएंगी। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे फादर दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं और उन्होंने मेरी मदर से शादी की थी जब वो 36 ईयर्स के थे और
मेरी मदर थी उस टाइम 25 ईयर्स की। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। और मेरी बड़ी बहन मार्गरेट का जन्म हुआ था 1926 फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में। I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. कहती है कि मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ था और जब तक मैं 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी। My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. ईयर 1933 में मेरे फादर हॉलैंड चले गए और मेरी मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक भी उनके साथ चली गई सितंबर में, जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गरेट को एशियन में बेचा गया हमारी ग्रैंडमदर के पास रहने के लिए। Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. फिर दिसंबर में मार्गरेट भी हॉलैंड चली गई और फरवरी में मार्गरेट का बर्थडे था और एनी फरवरी में मार्गरेट का बर्थडे प्रेजेंट बनकर उससे वहाँ मिलने गई। I started right away at the Montessori Nursery School. I started there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupidus, the headmistress. उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से और वो वहाँ पर तब तक रही जब वो 6 इयर्स की हुई। उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म में गई और जब वो 6th फॉर्म में पहुंची तब उसकी टीचर मिसेस क्यूपिरस थी। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. कहती है कि साल के एंड में जब फेयरवेल हुई तो हम दोनों बहुत रोए। We were both in tears. हम दोनों की आंखों में आंसू थे। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. कहती है कि गर्मियों का मौसम था 1941 में, उसकी ग्रैंडमा बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा था। इसकी वजह से उसका बर्थडे काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुई, बहुत कम सेलिब्रेशन हुई। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and I still love her. जनवरी 1942 में उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई और कहती है कि कोई नहीं जानता कि मैं अभी भी उनके बारे में कितना सोचती हूँ और उनसे कितना प्यार करती हूँ अभी भी। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. तो ईयर 1941 में उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाया था, तो और उन्होंने सोचा था कि इस साल का बर्थडे हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और बाकी कैंडल्स के साथ हम ग्रैंडमा की कैंडल भी जलाएंगे, उनकी याद में जलाएंगे। The four of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. बाकी के 4 लोग, मैं, मेरी बहन, मेरे मॉम और डैड अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आज है 20 जून 1942 जब मैं डायरी लिख रही हूँ। ओके, सो आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।